Friends, welcome to the commerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss in this video UGC Net Commerce important question part third. So let us start with our first question. क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए. Now, first question is recruitment and selection involve the following except. Options are the given. First, building a pool of candidates. Second, completing application form by applicants. Third, reduction of the workforce. 4. Employment planning and forecasting. So the correct option of this question will be option third, reduction of the workforce. Next question, the process of introducing the selected employees to the other employees in the organization. Options are the given. First, recruitment. Second, selection. Third, training. Fourth, induction. करेक्ट ऑप्शन विल बी द इंडक्शन, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं अदर एम्प्लॉयज़ के साथ तो वो पार्ट होता है इंडक्शन का. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फोर्थ, इंडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लिक्विडिटी रेशियो. ऑप्शंस आर द गिवन हेयर. फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स और फंड्स एम्प्लॉयड. Second, measuring of efficiency of business. Third, long-term ability to meet its application towards stakeholder. Fourth, ability of the business to pay the amount due to the stakeholder as and when it is due. So the correct option of this question will be option 4. Ability of the business to pay the amount due to the stakeholder as and when it is due. बात करें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तो इसके अंदर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स और फंड्स एम्प्लॉयड, ये पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का. सेकंड, मेजरिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ये है एक्टिविटी रेशो का पार्ट. और जो थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म एबिलिटी टू मीट इट्स एप्लीकेशन टुवार्ड्स स्टेक होल्डर, ये पार्ट आएगा आपका सोल्वेंसी रेशो का. बट जो लिक्विडिटी रेशो का पार्ट है वो आएगा ऑप्शन फोर्थ. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4. Now next question is controlled function of a management implies. Options are given here. To bring harmony in the various activity. Second, to keep the workforce satisfied. Third, to take corrective course of action. Fourth, to dedicate the subordinate. Correct option of this question will be option third, to take corrective course of action. Option third. Next question is Luther Gulick क्लासीफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो लूथर गुलिक ने क्लासीफाई किया था वो ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड, POSDCORB. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड. एंड नाउ व्हाट इज POSDCORB? इट स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. So the correct option will be option third. Now move to the next question. Two-factor theory was propounded by. Options are the given here. Harrisburg, second McGregor, third Maclellan, fourth Alderfer. टू-फैक्टर थ्योरी जो है वो हैरिसबर्ग ने प्रोपाउंड किया था और जो मैकग्रेगर है उन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, और जो मैकलेन है इन्होंने 3 नीड्स थ्योरी दी थी, और जो एल्डरफर है इन्होंने ERG थ्योरी हमें दी थी. बट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट, हैरिसबर्ग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर क्लेमिंग exemption under section 54B the SSE should acquire. Options are the given. First, urban area agricultural land. Second, rural area agricultural land. Third, any agricultural land. Fourth, none of these. So the correct option of this question will be option third, any agricultural land. Next question is total income of an SSE is determined on the basis of his. Options are the given here. First is residential status of India. Second, citizenship of India. Third, both the above. Fourth, none of these. So the correct option of this question will be option first, residential status in India. Now next question is which of the following is not the part of the modern based firm theories. So ये इंटरनेशनल थ्योरीज का पार्ट है
इंटरनेशनल थ्योरीज दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं. फर्स्ट वन इज़ द क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी एंड सेकेंड वन इज़ मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरी. जो क्लासिकल का पार्ट है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज, और जो मॉडर्न का पार्ट है मॉडर्न थ्योरीज का वो है कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी. सो ये मॉडर्न का पार्ट है, और इनमें से जो मॉडर्न का पार्ट नहीं है वो है फोर्थ ऑप्शन, क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी है ये कंपैरेटिव एडवांटेज, जो कि अर्ली द ईयर 1950 से पहले दी गई थी. 1950 से पहले ये क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल थी, और 1950 के बाद जो आई वो थी मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑप्शंस आर द गिवन, फर्स्ट एडम स्मिथ, सेकेंड डेविड रिकार्डो, थर्ड हेक्स्चर एंड ओलिन, फोर्थ माइकल पोर्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट एडम स्मिथ. इन्होंने ये थ्योरी 1776 में दिया था. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट एडम स्मिथ. नाउ व्हाट इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी? तो ये व्हेन वन कंट्री कैन प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ गुड with less cost than another country, the first country has an absolute advantage in producing that good. यानी कि जब कोई कंट्री किसी गुड को प्रोड्यूस कर रही है और उसकी कॉस्ट कंपैरेटिव टू द अदर कंट्री लेस है, कम है, तो उस कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा उस गुड के लिए जो वो प्रोड्यूस कर रही है. सो दैट इज़ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दैट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ early in the 1776. Now next question and the last question is balance of payment include, first is the capital account, second current account, third both first and second, fourth neither A nor B. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट दोनों को कंसीडर करते हैं. सो द थर्ड ऑप्शन both first and second will be the correct option of this question. So these are the questions जो हमने डिस्कस किए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.